عباس ابراہیم آپ کو سلام، کیا مختار سچ پہ ہے میں اس کا ساتھ دوں؟ کہا یہ فیصلہ میرے دادا علی نے میرے چچا محمد حنفیہ پہ چھوڑا ہوا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ابراہیم بس یہیں سے بس 2 منٹ کے بعد مسائل شروع کر دوں گا، مگر آج پرسہ دے لیجئے گا آپ۔ ابراہیم ابن مالک اشتر اٹھے اور سیدھے گئے کہاں؟ محمد حنفیہ کے یہاں۔ آپ پہ میرا سلام، آپ کیا مجھے بتائیں گے کہ میں مختار کا ساتھ دوں یا نہ دوں؟ اس میں امام کی منشا اس انقلاب میں اس قیام میں ہے کہ نہیں؟ فوراً محمد حنفیہ نے کہا سجاد کی موجودگی میں، زین العابدین کی موجودگی میں، علی بن حسین کی موجودگی میں محمد حنفیہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہا لیکن انہوں نے تو آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا پھر میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں میرے مولا علی نے ابراہیم ابن مالک اشتر کے نام ایک خط لکھا تھا، وہ امانت تمہیں دے رہا ہوں، وہ خط نکال کے پڑھ لو کہ علی نے کیا حکم دیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اس میں لکھا تھا مالک تم میرے لال کے خون کے انتقام کے لیے مختار کا ساتھ دینا۔ ارباب عذاب یہاں سے بات آ گئی تو میں وہاں تک چلوں، کیا عرض کروں؟ آپ نے لوگ کہتے ہیں کہ سجاد کی شہادت پڑھیے، سجاد کا قتل پڑھیے۔ سجاد کا کون سا قتل پڑھوں؟ ہائے ہائے، دنیا کا ہر معصوم ایک بار قتل ہوا ہے، سجاد بار بار قتل ہوا ہے۔ ہائے ہائے، آج یہ سوچ کے روئیے گا کہ جو روز کی مجلسوں میں مومنین کے سب سے پیچھے، اب میرے منہ سے لفظ نہیں ادا ہو پا رہے، وہاں آ کے بیٹھتا تھا، آج وہ آپ کے ساتھ آ کے نہیں بیٹھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا سجاد کے ہر مجلس میں آنے کا انداز اور تھا، آج آنے کا انداز اور ہے۔ روز مولا مجلس میں آتے تھے، آج تابوت میں آ رہے ہیں۔ کون سا مقتل پڑھوں؟ سجاد کو کون سا قتل پڑھوں؟ شام کے بازاروں سے جب گزر رہے تھے تو سکینہ اور سجاد میں جو گفتگو ہے، ایک جملہ سنیے۔ سکینہ کہتی تھی اے بھیا سجاد دعا کرو کہ سکینہ مر جائے سجاد نہ مرے، بھیا دعا کرو کہ سکینہ مر جائے سجاد زندہ رہے، جو کریں سجاد کا مرنا پڑو۔ جو یہ مقتل پڑھ رہا ہوں میں شام کا مقتل، بھیا تم وقت کے امام ہو، دعا کرو سکینہ مر جائے۔ جملہ برداشت کر سکو تو جب یاد کرو گے تنہائی میں رہو گے میری ماں، تبرک دے رہا ہوں مصائب کا، آنسوؤں سے بھگو دینا اس جملے کو۔ جملہ دوں، سکینہ کہتی تھی بھیا سجاد دعا کرو کہ میں مر جاؤں تم نہ مرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں مر جاؤں تو کم سے کم دفن کرنے کے لیے تمہارے جیسا ایک مرد تو میرے گھر میں ہے، اگر تمہیں موت آ گئی تو ہم قیدیوں میں اہل بیت رسول میں کوئی مرد ہے ہی نہیں جو تمہیں دفن کرے گا۔ سجاد جب چہلم کے دن آئے ہیں، جناب زینب کے ساتھ جب مرثیہ پڑھا ہے، چونکہ چہلم پہ ہم لوگ کربلا میں تھے اس لیے 2 جملے اس کو یاد کرتے ہوئے، ناصر بھائی مجلس سے پڑھتے تھے، بھائی کمال ہوتے تھے ہم لوگ، 2 جملے اس جملے کو یاد کرتے ہوئے عرض کر دے رہا ہوں یہاں پہ۔ سجاد جب گئے تو سجاد کا مرثیہ معلوم ہے کیا تھا؟ کبھی اکبر کی قبر کی طرف، کبھی عباس کی قبر کی طرف، کبھی مولا حسین کے سینے پہ علی اصغر کی لہر کی طرف دیکھ کے کہتے تھے اکبر کلیجے پہ برچی کا تھلکانا آسان تھا، کبھی کہتے تھے علی اصغر گردن پہ 3 تھل کا تیر کھانا آسان تھا، کبھی قاسم کی طرف دیکھ کے کہتے تھے قاسم زندہ گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال اڑانا آسان تھا، کبھی ادھر رک کر کے کہتے تھے چچا عباس شانوں کو کٹوا دینا اور شانوں کے بغیر زمین پہ منہ کے بل گرنا آسان تھا۔ چاروں طرف سے آواز آئی سجاد برچی آسان تھی، نیزہ آسان تھا، تیر آسان تھا، تلوار آسان تھی، پامالی آسان تھی، بازو کٹنا تو پھر مشکل کیا تھا؟ کہا مشکل تھا زینب جیسی ماں کے ساتھ شرابیوں کا بازار۔
यजीद जैसे शराबी का दरबार, ये सज्जाद के लिए कत्ल के बराबर था। मुख्तार, मोहम्मद हनफिया, ज़ैद, सुलेमान इब्न सर्द खजाई, सबके इनकलाब को सलाम। मौला ने अपने सिपाही से जिस वक्त उमर साद मलून, खुदा लानत करे, उसका सर भेजा है मौला सज्जाद के यहाँ, तो मौला सज्जाद, अब मैं चूंकि ये मजलिस का तकाजा ऐसा है कि थोड़ा सा मदीने की तरफ आ जाऊं। यम्बू का मैंने वाक़या आपके सामने पेश किया। अब ये ज़माना देखिए मदीने का। मौला सज्जाद के सामने जिस वक्त मुख्तार ने अपने सिपाहियों के साथ उमर साद का सर भेजा, उमर नहस का सर भेजा, मौला सज्जाद उस वक्त खाना माजर तनाउल फरमा रहे थे। जैसे इस सिपाही ने ला के सर दिया है तो मौला सज्जाद मुस्कुराए नहीं बल्कि खून के आंसू रोने लगे। दाढ़ी खून से तर हो गई और उसके बाद एक जुमला कहा, पालने वाले तूने अपना वादा सच करके दिखाया, जालिम को उसकी औकात तक पहुंचा दिया। और उसके बाद एक जुमला निकला कि इब्ने जियाद के दरबार में ये मलून मेरे सामने जब खाना खाता था तो तश्त में मेरे बाबर का सर रखता था। हाय हाय हाय, मुख्तार तुम्हें सलाम। आज ये मैं कर क्या रहा हूं, मसाइब में फजाइल की कैफियत और फजाइल से मसाइल की कैफियत निकल रही है। मौला सज्जाद, दिन आपका, शहादत आपकी, मगर तज़किरा मुख्तार का किए दे रहा हूं। मौला सज्जाद मुस्कुराए नहीं बल्कि जब खून के आंसू रो चुके तो दाढ़ी को मौला जो है वो एक शाल अज़ा रखा करते थे, काली काली शाल। हाय बाबा, आज का दिन तो मैं जो जुमला करने का, पांचवें इमाम जिस वक्त गुस्ल देने लगे ना तो ऐसे चीख मार के रोए जैसे मौला अली ने बीबी ज़हरा को गुस्ल देते वक्त चीख मारी। मेरी माँ 7 चादरें मेरे मौला ने बीबी ज़हरा की बदली थी। इतनी जगह से हड्डियां शिकस्ता थी कि एक चादर में खून, दूसरी चादर में खून। मौला चीख मार के रोए थे। ऐसे ही मोहम्मद बाकर मौला सज्जाद को गुस्ल देते वक्त चीख मार के रोए। आज की तारीख है, जब किसी ने पूछा, इमाम जाफर सादिक ने पूछा, बाबा जान आप इतना चीख मार के क्यों रोए दादा को गुस्ल देते वक्त? अब मेरी समझ में आया कि मेरा बाबा जिंदगी भर काली चादर कांधे पे क्यों रखता था, इसलिए कि ये तौख की वजह से गर्दन की हड्डियां जो थी वो गल के खत्म हो गई। वाह मोहम्मद, वाह। सुनिए, उमर साद का सर आया है और मौला खून के आंसू रो रहा है। रोने का सबब सुनेंगे आप? जब उस सिपाही ने पूछा मौला आप अब भी क्यों रो रहे हैं, तो मौला ने हाय करके जुमला का, मातम करके जुमला सुनिएगा। जिस जुमले को आप फजाइल में सुनते हैं वो जुमला सबसे बड़ा मसाइब है मेरे सज्जाद के लिए। मौला सज्जाद कहते हैं, ए मुख्तार के सिपाही ये तो बता कि हुरमुला का क्या हुआ? हाय बाबे, मुख्तार का सिपाही दौड़ता हुआ गया और जाकर मुख्तार ने जब पूछा कि बता मेरे मौला की क्या कैफियत थी, कुछ हुए कि नहीं? का मौला तो इतना रो रहे थे और बार बार उमर साद को भूल के वो सिर्फ एक ही सवाल करते थे, हुरमुला का क्या हुआ, हुरमुला का क्या हुआ? मुख्तार को जलाल आया, सर से ताज जमीन पे फेंक दिया और उसके बाद कहता है, खून हुसैन की कसम, जब तक मैं हुरमुला का बदला न ले लूंगा, हुरमुला का कत्ल नहीं करूंगा, उस वक्त न ये ताज सर पे रखूंगा न तो मैं तख्त पे बैठूंगा। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अगर वो जमीन में भी कहीं दफन है तो निकाल के ले आओ। मुख्तार सोया नहीं तब से एक लम्हे के लिए। जब किसी ने लाके घेर के हुरमुला को मुख्तार के दरबार के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया, मुख्तार, हुरमुला आ गया। मुख्तार बैठे जलाल में, उठे बैठे और उसके बाद में गिरफ्तार था हुरमुला। पूछा, हुरमुला तुमने किया क्या था कि मेरा मौला बार बार रो के पूछता हुरमुला का क्या हुआ? आमीर, मुझे कत्ल कर दे मगर न पूछ का, मुझे मक्कल महसूस कराना है, बता मेरा मौला रो क्यों रहा है तेरा नाम लेके? कहा मैं क्या बताऊं, मेरे पास 6 तीर थे।
तो सुन लीजिए मौला सज्जाद का फुर्सा लेना। अब इसके बाद शहादत पढ़ूं ना पढ़ पाऊं, मेरे पास 6 तीर थे। क्या किए? का 3 तीर तो जाया हो गए। का कैसे? अली असगर के खौफ से जब मैं तीर चलाना चाहता था, कभी कोई अपना गला सामने लाता था, कभी फातिमा ज़हरा कहती थी मेरे बच्चे की गला क्या, ये गिर जाता था। मैंने आंखों में पट्टी बांधी और वो तीर जो चलाया तो मेरे एक तीर में दो हदफ बनते थे, 2 निशाने बनते थे। उस तीर ने सबसे पहले तो अली असगर का गला छीना, उसके बाद हुसैन का बाजू छेद के निकल गया बाहर। एक तीर अली असगर को मार का, एक तीर और अली असगर से पहले इस्तेमाल हुआ था। का वो कौन सा? कहा जिस वक्त अब्बास का एक हाथ कट गया, अब्बास ने दूसरे हाथ में परचम संभाला, गाजी दूसरा हाथ कट गया, अब्बास ने सीने से कटे हुए शानों से परचम को संभाला। और उसके बाद जब बाजू दोनों गिर गए तो फिर दांतों में मशकीजे को दबा के जितने शाने बचे थे उनको सिपर बना के सीने की पसलियों के पास ऐसे मशकीजों को लिए हुए थे। मेरी समझ में नहीं आया था कि अब्बास के शाने कटने से तो अब्बास का कुछ नहीं होगा जब तक मशकीजे का पानी न बहे। उसमें दौड़ के कभी इधर जाता था कभी इधर जाता था, और चूंकि सबसे बड़ा तीरंदाज मैं था और मैंने अरब के तीर बनाने वालों से स्पेशल ये तीर बनवाए थे, उन्हें कई दिनों से मैंने जहर में उठाया था, तो अब्बास के मशीजे को, सकीना की मश्क को मारने के लिए मैंने जो इस्तेमाल किया था तीर, उसकी जो फलियां थी वो हिरन की सींग से मैंने पतली सी बनाई थी ताकि वो सीधे पहुंचे। मैं दाएं गया बाएं गया, निशाना बना के मैंने देखा जैसे ही अब्बास के सर में इधर गुर्ज लगा, अब्बास के सर में बेचैनी हुई, मैंने तीर का निशाना लगाया, मशीजे को छीन के अब्बास की पसलियों के पार मेरा तीर निकला। अब्बास ने घोड़ा मोड़ दिया, मौला अब खैमे में न जाऊंगा, वापस दरिया। हाय मौला सज्जाद, इसलिए कहते थे हुर्मुला कहाँ है? मुख्तार ने कहा तेरे तीर जाया हुए, एक से तूने अली असगर को शहीद किया हुसैन के बादलों के साथ। हाय मेरा भैया अली असगर, सकीना, और एक से तूने बहन सकीना की मश्क को छलनी किया। अब्बास के पसलियों में वो तीर जाके लगा। तू बयान करता है, अब बता तेरा आखिरी छठा तीर कब लगा? अरबाब ऐसा आप सुनेंगे का जिस वक्त हुसैन जुलजना पे झूम रहे थे, पूरे जलाल में थे, कहते थे तुमने मेरा अकबर मारा, बस खत्म है मजलिस। मौला सज्जाद आपका पुरसा मौला हुसैन को पेश करते नाम जमाना को पेश करते हैं। मौला हमारी अज़ादारी कबूल कर ले, वाली मजलिस की अज़ादारी कबूल कर ले, मजलिस करने वालों की मुरादें पूरी हो जाए, मजलिस में बैठने वालों की हाजतें पूरी हो जाए। मौला हमें कोई गम नहीं चाहिए सिवाय हमें हुसैन के, बस खत्म है मजलिस, उसके बाद मातम में हुसैन। अरबाब रज़ा वो कमबख्त हुर्मुला कमीना मलून कहता है कि मौला हुसैन जुलजना पे झूल रहे थे, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे अली अकबर को बच्ची मारी, तुमने मेरे अली असगर को तीर मारा। और हुसैन की शजाअत का ये आलम था कि जब इधर के तीर मौला घूमते थे तो उधर को आ जाते थे, इधर घूमते थे तीर उधर को, मगर हुसैन की शजाअत पे कोई असर न होता था। ऐसे में मैंने एक तीर हुसैन की पेशानी पे मारा, ज़हरा का लाल डगमगा के ज़ीन से जमीन पे आया, सर को सजदे में रखा। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अला लानतुल्लाह अला